Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Today I will be talking about recently concluded deal between India and United States. There are two aspects of this deal. One is that US press claiming several things from zero tariff to US product in India, from opening up agriculture sectors, from stopping buying Russian oil. The real bone of contention between the two countries while concluding the deal was opening up of agriculture sectors and dairy products. India was very firm and India still now is very firm. From the different government sources, it is very clear that India is not going to open its agriculture sector and dairy sector for US goods. On the decrease of tariffs for zero up to zero for US product, still government has no official statement, and I will go by the official statement. Though both the parties has similarities that the tariffs has, which was 25% tariff from 25 and 25 is equivalent to 50%, is now dropped to 18%, and it is the lowest tariff in Indian subcontinent on any country by US. Moreover, on the oil, purchasing of oil, India has made it very clear that India will purchase oil on the market basis. From where it will find cheaper, it will purchase. The stance is very clear, and that will be non-sanctioned oil. But my only question and clarification from the government is which sanction? Whether it is sanction from United States or the sanction from UN, because India will not hand over its sovereignty of following the sanctions of particular country. So let's see what India considers this sanction as. It's bilateral sanction or what? Still, the thing is not very clear. But it is said that the sanction while India will non-sanctioned while. So I will wait for the outcome. Moreover, India is very clear that its energy need will be fulfilled from where it is getting cheaper for the interest of the people. So no question on this. Agriculture, it's very clear that it is not going to open, and it will protect the interest of its farmer, indigenous farmers. Dairy, it remains same. On business of $5 billion and increasing multifold up to five times multifold. Definitely, when the tariff is reduced and sanctions are removed, the business will increase. And India is a potential market, and India is also going to be a manufacturing hub as a Make in India proceeds further stage. India is slowly and steadily moving on the path of indigenization, Make in India. So I can say it's a welcome deal. And despite that, the opposition is trying to create a lot of confusion. दूसरे शब्दों में कहें कि भारत सरकार को इस डील के बारे में यह खुला बोलना चाहिए कि क्या इसके माइन्यूट्स हैं, इसमें संसद पर भी चर्चा होनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो एक प्रेस रिलीज रख के जनता के बीच में जानी चाहिए। क्योंकि विपक्ष द्वारा जब डील नहीं हो रहा था तो बोला जा रहा था भारत 50% टैरिफ सफ़र कर रहा है। जब डील हो गया तो बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यही सबसे बड़ी कांग्रेस की भी प्रॉब्लम है, यही अमेरिका की भी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो नरेंद्र मोदी इज अनकरप्टेबल, अनकम्प्रोमाइज्ड एंड ही कांट बी कम्प्रोमाइज्ड। लेकिन बात हुई जो ऐसा क्या हुआ जो सडन, और दूसरा चीज़ जो हुआ ओनली अमेरिका अनाउंसेस, इसमें बड़ा क्लच है। दो तरीके से देखिएगा, एक अमेरिका को क्रेडिट लेने की बीमारी, दूसरा बात पलटने की बीमारी। सपोज कीजिए कुछ टर्म एंड कंडीशन
भारत सरकार की तरफ से अनाउंस हो जाते और अमेरिका पहले नहीं अनाउंस करता और अमेरिका पलट जाता, तो यही भारत का विपक्ष लोकल ऑडियंस जो है इसको किरकिरी का सब्जेक्ट बना देता। आज भारत अपने टर्म्स की बात कर रहा है। आप याद रखिए, भारत के किसी भी मंत्रालय द्वारा अभी तक एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई है, अभी तक डेयरी की बात नहीं हुई है। सोर्सेस द्वारा ये हुए हैं कि भारत इस पर कोई समझौता नहीं कर रहा है, और ये भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा पहले से भी यह बोला जा चुका था कि भारत लोकल फार्मर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के खिलाफ के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कार्य नहीं और कोई समझौता नहीं करेगा। जो भारत के लिए सबसे श्रेष्ठ होगा वही डील भारत करेगा। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, इतने दिनों से यह समझौता सिर्फ इन दो मुद्दों पर, मेनली इन दो मुद्दों पर अटका पड़ा था। तो समझ सकते हैं जो दूसरी चीज, भारत के सरकार द्वारा 18% टैरिफ की बात हुई है, जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, मतलब 25% पहले से था प्लस 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब इट वॉज 50%, उसको अब 18% पे लाया गया है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे कम लोएस्ट टैरिफ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत की जो ट्रेड डील पर जो स्टांस थे वो कैसे है। तो अब हम दूसरे दिशा में चलते हैं। दूसरा दिशा हमारा ये है कि क्या भारत अपने हितों का समझौता किया है? तो बिल्कुल नहीं। रही बात रसिया से तेल खरीदने की, तो भारत ने स्पष्ट कहा है जहां से उसको सस्ता मिलेगा वो खरीदेगा। सैंक्शन, तो सैंक्शन क्या वो अमेरिका द्वारा थोपा गया सैंक्शन को मानेगा या यूएनओ द्वारा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मानेगा, ये देखने वाली बात है। इसको भारत कैसे एड्रेस करता है। और क्रूड ऑयल को लेके, वेनेजुएला का क्रूड ऑयल, तो भारत ही दुनिया का एकमात्र मैं नहीं बोलूँगा, जो सबसे बड़ा जो वेनेजुएला टाइप का जो हार्ड क्रूड ऑयल है उसका रिफाइनरी भारत के पास ही है। तो देख सकते हैं कि भारत किस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस डील को नेगोशिएट किया है। और भारतीय और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील के बाद अमेरिका के अंदर यह छटपटाहट थी कि भारत अब अपने मार्केट को आउटसोर्स कर रहा है दूसरे देशों की तरफ, दूसरे रूट्स की तरफ। तो अमेरिका आया। हाँ, ये चीज़ और हो रही है, अमेरिका क्यों पहले अनाउंस किया है और भारत क्यों चुप? क्योंकि अमेरिका की एक आदत है बात पलट देने की, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को तोड़ने की। अब देखेंगे रिसेंटली जो आप अमेरिका ने कैसे अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया अकाउंट से चैट्स जो हुए थे उसको लीक किया गया था, ह्यूमिलिएशन था। और हम इस एम्बैरेसमेंट से हमें बचना था, क्योंकि सामने वाला जो है पागल भी है और ताकतवर भी है। तो उसके पागलपंती से भी बचना है, उसके ताकत के घमंड से भी बचना है, लेकिन अपने हितों को सुरक्षित भी रखना है। इन दैट केस हमने अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा। और अमेरिका के द्वारा किसी भी दिए गए स्टेटमेंट का, जो अमेरिकी, खास करके अमेरिकी अलग अलग जो संस्थाएं उनके द्वारा जो ये है उसको ना हम खंडन किए हैं ना एक्सेप्ट किए हैं। भारत अपनी बात का, अभी मैं बोला, भारत अपनी बात अभी कह रहा है। टैरिफ ऑयल के बारे में भारत ने स्पष्ट किया है, जो ऑयल खरीदेगा जहाँ से सस्ता मिलेगा। और एग्रीकल्चर और फार्म्स के बारे में क्लियर ही है। बाकी ऑन प्रोडक्ट्स के लिए तो देख ही रहे हैं, जो क्या एक भारत का नॉर्म्स है उस हिसाब से अपना करेगा भारत डील। ये 0% वाली बात है, वो नरेंद्र मोदी जी के कहीं भी या किसी भी मिनिस्टर के इससे नहीं है। हाँ, भारत कितने परसेंटेज तक लाता है, इस पर भारत सरकार को एक डिटेल प्रेस रिलीज भी जारी करनी चाहिए, एक डिटेल पार्लियामेंट में डिस्कशन भी होना चाहिए, जिससे कि अफवाहों के बाजार को रोक लगे। क्योंकि देश में हम देख रहे हैं कि कैसे अफवाहों का बाजार, अफवाहों का दौर चल रहा है। इससे हमको पार पाना है, इसको किसी भी तरीके से हमें ठीक करना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।